ہاں، ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ ہلو، ہاں ہلو، ہاں کون؟ جاہد حسین صاحب بول رہے ہیں کیا؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ میں محمد عمر بول رہا ہوں، مجھے کہاں سے؟ جانتے ہیں؟ ہاں، ہلو، آپ جانتے ہیں مجھے؟ ایک عمر کو تو جانتے ہیں، آپ کہاں کے ہیں؟ کون سے عمر کو جانتے ہیں آپ؟ جوری گھر ہے ان کا، آپ کا کہاں گھر ہے؟ نہیں نہیں، میں تو ممبئی سے بول رہا ہوں۔ اچھا، وہ جعفر سلفی صاحب کو آپ پہچانتے ہیں کیا؟ جعفر سلفی صاحب کہاں کے ہیں؟ آپ کے ساتھیوں میں سے ہے نا وہ جعفر صاحب؟ کہاں کے ہیں؟ کہاں سے مطلب؟ کون جگہ پہ رہنے والے ہیں؟ چھتیس گڑھ میں؟ چھتیس گڑھ کا نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ اچھا، وہ جعفر کو نہیں جانتے آپ؟ نہیں نہیں۔ اچھا اچھا، آپ کون سے مسلک کے ہیں جناب، بتائیں گے؟ میں مسلمان ہوں بھائی صاحب۔ ہاں مسلمان ہیں، لیکن مسلک کون سا ہے؟ مسلک اسلک ہم نہیں جانتے، ہم سیدھا سادہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ جیسے مسلمان تو دیکھو شیعہ بھی بولتے ہیں اپنے آپ کو، قادیانی بھی بولتے ہیں، بدعتی بھی بولتے ہیں، تو اس سے پتہ نہیں چلتا نا کہ کون سے مسلمان ہیں۔ ہم سنی مسلمان ہیں، شیعہ نہیں ہے۔ سنی میں کون سے؟ سنی میں بھی کئی لوگ بولتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی حنفی بولتا ہے، کوئی شافعی بولتا ہے، کوئی حنبلی بولتا ہے، کوئی اپنے آپ کو غیر مقلد یا رجسٹر اہل حدیث بولتا ہے، اس طریقے سے بہت سارے سنی بولتے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں، جی ہم اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں۔ اچھا اچھا، مسلم بولتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو؟ یہی نام دیا ہے نا کہ آپ کا نام مسلم ہے۔ کہاں پہ کون مسلم تو ایک؟ ہاں، نام مسلم رکھا ہے کس نے قرآن میں۔ اپنے نام میں مسلم رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ اچھا، مسلم رکھا ہے۔ ہاں، اچھا، تو کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا نام مسلم رکھو؟ کہاں پہ یہ آیت ہم کو یاد نہیں ہے ابھی۔ تب پھر کیسے آپ بتا دیے آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو اللہ پہ بھی آپ جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کا نام مسلم رکھا ہے، اور مسلم سب رکھ سے اچھا دین ہاں اسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ ہاں، اسلام دین ہے نا، دین دین، اسلام ہے۔ ہاں، صرف ایک ماننے منٹ، والے ہم دین آپ کا نہیں پوچھے، آپ ہم کو معلوم ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ تبھی ہم نے آپ کو سلام کیا نا، لیکن آپ کون سے مسلک کے ہیں وہ بتائیے۔ بھائی اتنا مسلک لے کے کچھ کرنا نہیں ہے، سمجھے؟ مرنے کے بعد مسلک نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا کون مسلک تھا، کون مسلک۔ بالکل پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا، آپ کون سی جماعت کے ہیں، کون سے فرقے ہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں کہاں ہے، سنیے ایک منٹ، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، جیسے کہ ہاں بنی اسرائیل میں 72 تھے تو اس امت میں 73 ہوں گے، سارے ہاں فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، ما انا علیہ و صحابی۔ ایک فرقہ ہاں۔ جائے گا تو فرقے میں فرقہ ہی جنتی جائے گا نا، ایک فرقہ جو جنتی جائے گا۔ بھائی صاحب ہاں، تو سنو سنو، ایک فرقہ جو تو مسلمانوں میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 ہوں گے۔ پوچھے نا اللہ کے رسول سے کہ پوری کون بات سا سن لو نا، پوری بات سن لو، مسلمانوں میں کتنا فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو ہاں، تو جو مسلمان جہنم میں جائے گا وہ بھی مسلمان فرقہ ہوگا، وہی مسلمان فرقہ ہوگا، لیکن جو جنت میں جائے گا وہ ایک فرقہ ہوگا جس پر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ما انا علیہ و صحابی، اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل سنت یعنی سنت کے طریقے پہ چلنے والا، بڑی تشریح کرنے نہیں دے رہے خالی ہو اپنے جی؟ بولیے۔ اچھا، آپ بول لو پھر مجھے اللہ کے موقع دے رسول دینا۔ ہاں کون سا فرقہ جنت میں جائے گا تو اللہ کے رسول کیا بولے کہ وہ فرقہ پہ جنت میں جائے گا جو میرے بعد میرے صحابہ پہ عمل کرے گا۔ تو اب ہم جو عمل کرتے ہیں وہ چیک کیجئے، کیا یہ اللہ کے رسول کیے ہیں یا صحابہ کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کیے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہاں جائیں گے۔ ہاں، یہی تو بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ، ٹھیک ہے، دیکھو سنو سنو، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟
سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان رسول اللہ قام فینا فقال الا ان من قبلکم من اہل الکتاب ترکوا علی اثنین وسبعین ملۃ وان هذه الملۃ ستفترق علی ثلاثۃ وسبعین اثنان وسبعون فی النار وواحد فی الجنۃ ہی الجماعۃ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خبردار اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور یہ تم ملت اسلامیہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے جہنم میں، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہی کون فرقہ ہوگا؟ الجماع، یہی جماعت ہوگا۔ تو تم کس جماعت میں ہو وہی میں پوچھ رہا ہوں، اور اس سے مراد اہل سنہ والجماعت ہے، تو تم کس فرقے سے ہو وہی فرقہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے، جو جنتی فرقہ جو جنت میں جائے گا، کیا اس فرقے میں ہو کہ تم دوسرے فرقے میں ہو؟ ہاں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ ہم بھی بول رہے ہیں، حافظ ابن، ہاں بتائیے ہم بھی اہل سنت والجماعت سے ہی ہیں، ہم کو آپ اہل سنت والجماعت ہیں؟ ابھی تو بول رہے تھے ہم کسی بھی فرقے کے نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، تو آپ اہل سنت والجماعت کہنے لگے۔ تو ہاں ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اہل سنت والجماعت میں چار مسلک کے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ آپ کون سے فرقے کے ہیں؟ یہ مسلک بنانے کے لیے کس نے بولا؟ اللہ بولے کہ مسلک بنا، ہاں، یہ چاروں امام بولے کہ میرا مسلک بنانا میرے نام پہ۔ اچھا، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سے فرقے کے ہیں؟ غیر مقلد فرقے کے ہیں؟ ارے بھائی، جب جو ہم بول رہے ہیں وہ بولیے۔ نہیں، یہ بتائیے، میں یہی بتا رہا ہوں، آپ کون سے فرقے کے ہیں بتائیے۔ ہم تو پہلے ہی جب دیش میں کون سے؟ تو کیا کہنے کا مطلب ہے تو بولیے۔ کون سے فرقے؟ وہی فرقہ مانیں گے، کون فرقہ صحیح ہے؟ کون سے فرقے کے بتائیے؟ آپ بتائیے نا کون سا فرقہ صحیح ہے؟ آپ بتائیے کون سا فرقہ، تب میں بتاؤں گا نا کون سا فرقہ صحیح ہے، پھر آپ پتہ چلے گا نا۔ ابھی ایسا تھوڑی آپ کھل کے بتائیے۔ آپ ڈر کیوں رہے بھائی؟ کھل کے بتائیے کہ آپ کون سے فرقے کے ہیں۔ ہم تو سیدھا سادہ مسلمان ہیں اور کچھ نہیں ہے، بس اگر بول رہے ہیں کہ یہ فرقہ صحیح ہے، جنت میں جائے گا تو اسی فرقے کو مانیں گے۔ اب بولیے جی، ہلو، ہم بولے مسلمان بولے نہیں فرقہ ہونا چاہیے، تو نہیں، فرقہ الگ ہے، مسلک الگ ہے۔ فرقہ الگ ہوتا ہے، مسلک فرقہ جو ہے اہل سنت والجماعت ایک ہی فرقہ ہے، اسی فرقے میں 4 مسلک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرقہ الگ ہوتا ہے۔ سنو دا یار بات کو پوری طرح، یہ چاروں جو مسلک ہیں، حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، یہ سب ایک ہی ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ہاں، یہ فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہے، جیسے کہ دیکھو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر جو ہے ایک بھی پڑھے ہیں، 3 بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں۔ اب کوئی ایک اختیار کر لے، کوئی 3 کر لے، تو وہ فرقہ نہیں ہوتا ہے، وہ مسلک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ مسلک ہوتا ہے۔ تو حنفی نے ایک کو اختیار کیا، 3 کو، شافعی نے ایک اختیار کیا، تو یہ اس کو فرقہ نہیں کہیں گے، اس کو مسلک کہیں گے، کیونکہ یہ سب حدیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ بتائیے آپ کس فرقے سے ہیں، یہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن حدیث پہ عمل کون کرتا ہے۔ ہاں، آپ بتائیے۔ اچھا، یہ بتائیے، چلیے جب امام قرات کرے تو مقتدی کو قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ بتائیے۔ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں؟ دعوت دینے کے لیے فون کیے نا، تو آپ بتائیے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو قرات بالکل نہیں کرنا چاہیے، قرآن نے بھی منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی منع کیا ہے، اور اسی پر امت نے اسی پر اجماع بھی کیا ہے۔ بتائیے ہاں، منع کیا ہے اللہ کے رسول، کس نے کیا منع کیا؟ مطلب قرآن میں کہاں منع کیا ہے؟ اچھا، ہاں، قرآن شریف کی آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح بولے تھے، سنیے نا، ہاں، جب بتائیے۔ امام کرتا ہے تو اللہ کے رسول کا حدیث ہے
कौन जिसकी नमाज नहीं, जिसकी सूरह फातिहा नहीं, तो सूरह कौन फातिहा कौन से हदीस है अल्लाह के रसूल की कि इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए? वो बताइए कौन सी हदीस है? व्हाट्सएप नंबर दिया, हम भेज देंगे। उसमें है नहीं कौन सी है बताइए ना। सुनिए तब ना। हाँ तुम बताइए। अपने जी में पढ़ो, ठीक हाँ है? हाँ सूरह फातिहा जब इमाम पढ़े तो तुम अपने जी में पढ़ो, मगर सूरह फातिहा पढ़ो, क्योंकि तो मैं ये कह रहा हूँ कौन सी हदीस की बात कर रहे हैं बताइए। जब इमाम, सुनिए ना, इमाम जब किरात करे तो तुम खामोशी से सुनो, है ना, शोर मत मचाओ। तो जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता है ना, अरे रुक ना यार, एक मिनट, कुरान को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मानते हैं। तो जब कुरान कह रहा है इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह फरमाते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और उसको गौर से सुनो। दो चीज है, उसको गौर से सुनो यार पूरी बात को यार। उसको रुको यार, उसको गौर से सुनो और खामोश रहो। और अल्लाह के सुनो ना भाई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? कुरान हदीस दोनों को मानते हैं। दोनों मानते हैं। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, इसमें इमाम सुनन निसई और इमाम मुस्लिम और दूसरे सुनन इब्ने माजा, इमाम सुनन निसई ये कुरान की आयत को नकल करके व इजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, इसकी तफसीर में अल्लाह के रसूल का ये फरमान नकल किया है। अल्लाह के रसूल का जो हदीस नंबर 920 और 921 तो फरमाते हैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा क़रअ फ़अनसितू, कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम उसकी पैरवी करो। जब वो तकबीर कहे यानी अल्लाहु अकबर कहे नमाज के लिए तो तुम तकबीर कहो, और जब वो किरत करे तो तुम खामोश रहो। यानी जब इमाम किरत करना शुरू करे तो मुक्तदी को खामोश रहने का हुक्म है। और हदीस में और कुरान में वही बातें कही गई हैं, और आइम्मा ने, सारे आइम्मा ने भी वही बात कही है। तो आप ज्यादा जानते हो या सलफ ज्यादा जानते हैं ये कुरान और हदीस को? कौन ज्यादा जानता बताइए? हवाला दे रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कोई नमाज पढ़ी और इसमें उम्मुल कुरान सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नाकिस है। ये सही मुस्लिम का हदीस नंबर 300। अरे भाई, अरे मैंने क्या पूछा आपसे मैंने क्या पूछा आपसे? हाँ। इमाम के पीछे जो मुक्तदी है उसके लिए मैंने पूछा, कोई हदीस आपके पास ऐसी है? सुनो ना बारिका, पूरी बात तो सुन लो। किसने तुमको भड़क समझाया, कैसे नहीं समझाया? मैंने क्या कह रहा हूँ कि एक अकेले नमाज पढ़ना, तो उसके लिए तो सूरह फातिहा वो पढ़ेगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जब इमाम किरत करे तो मुक्तदी को सूरह फातिहा या किरत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तुम ऐसी कोई हदीस बताओ जो इमाम के पीछे मुक्तदी के लिए हो, अकेले नमाज वालों के लिए नहीं या इमाम के लिए नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, ये हदीस में इमाम और मुक्तदी का जिक्र ही नहीं है। जिसने भी नमाज पढ़ी और सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है। नहीं तो सुनो, जो तुम कह रहे हो ना, तो सुनो नाकिस है नाकिस का क्या मतलब है ये बताइए। चलो, मतलब नमाज नहीं है। अच्छा, किसने नाकिस का मतलब कौन सी लुगत में है कि नमाज नहीं है? जरा बता दो। इसका ये मतलब है कि नाकिस है उसका नमाज नहीं है, कौन सी लुगत में है? तो मुझे ये बता दो किसने उसका ये तर्जमा किया है। अबे हदीस पे तुम लोग झूठ बोलते हो यार, अस्तगफिरुल्लाह। हदीस पे झूठ बोलते हो। किसने, अच्छा किसने ये तर्जमा किया कि किसका तर्जमा है? जरा मुझे बताओ, वो हदीस बताओ कि किसने कहा हो कि उसकी नमाज नहीं। मुस्लिम हदीस नंबर 395 395 में तर्जमा में बोला किसने कहा नाकिस का मतलब किस लुगत में है कि नमाज नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ। तो नाकिस का मतलब क्या होता है? हाँ ऐसा पूछो ना, नाकिस का मतलब क्या होता है और नाकिस का किसको कहते हैं, इस तरीके से पूछो। तुम झूठ क्यों बोलते हो? जब अल्लाह, हाँ ये गलत बात है, गलत। नाकिस का मतलब ये नहीं कि नमाज ही नहीं होती। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में कहा गया है कि ये चीज नाकिस है या ये चीज होती ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि तुम मानोगे नहीं? जो हाँ देखो, जो एक तो अल्लाह का फरमान है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। सुनो,
तो सुनो इल्म सुनो नहीं है वो सुनो जो भाई, सुनो 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 से हाँ, क्या चीज जो क्या चीज नहीं आपको ज्यादा पता है। क्या चीज क्या तो चीज नमाज पढ़ने से पहले वो आयत नाजिल हुआ है जब हुजूर कब? ये हाँ नमाज हाँ, पढ़ते थे उस हफ्ते में नमाज तो से पहले मुसलमान आयत नाजिल हुई है वो? एक हाँ? मिनट, नमाज से पहले ये आयत नाजिल हुई है? हाँ ये किसने कहा, जरा मुझे बताओ, किसने आपसे ये झूठ बोल दिया कि ये नमाज से पहले ये नमाज से पहले आज? अरे यार रुको जाओ ना, बहुत बड़बड़ कर रहे हो फालतू में इब्ने तुमको। कसीर को मानते हैं ना उसमें हाँ, जाकर पूरा फातिहा का इब्ने तफसीर कसीर इब्ने कसीर का मैं आयत पढ़ देता हूँ, चलो इसी आयत सानी नजूल में पढ़ देता हूँ। इब्ने कसीर, तुम इब्ने अब्बास सुनो ना यार, सानी, अरे यार सुनो ना, तुम किस कहाँ नाजिल हुई वो बात मैं बता रहा हूँ ना, रुको ना, खामोश रहो, मैं बता देता हूँ ना कैसे नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई। तुम परेशान क्यों हो यार बेमतलब का? कम से कम सबर तो रखो तुम। यार तुम मुसलमान हो कि क्या हो? मुसलमान हो कि क्या हो बताओ जरा, हैं? मुसलमान हो ना? अरे तफसीर ने कसीर मेरे पास है, देखो मैं इसमें पढ़ देता हूँ, ठीक है? हाँ इसमें पढ़ देता हूँ तफसीर ने कसीर, और दूसरी तफसीरें मैं सब बारी बारी पढ़ता हूँ, तफसीर ने जरीर भी पढ़ता हूँ, ठीक है? ये देखो तफसीर ने कसीर मेरे पास है, इसमें इन्होंने फरमाया है काल इब्न जरीर हद्दसना अबू कुरैब हद्दसना अबू बकर बिन अय्यास, यानी सनद के साथ इन्होंने अरे यार रुक ना रहा तो पढ़ के सुना देंगे। तो यार पढ़ के क्यों नहीं सुनना? मैं तफसीर ने कसीर दूसरी चीज आयत जहाँ नाजिल हुई है मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो सबर से। अल्लाह रसूल की बात नहीं मानना है क्या तुझे? सुनिए ना आप, तुझे अल्लाह रसूल की बात, तुझे कुरान हदीस नहीं मानना है, बस अपनी चलाना है। किसी ने तेरे को समझा दिया, बता दिया, बस उसी के मानेगा, कुरान हदीस नहीं मानेगा। मैं कुरान हदीस की बात कर रहा हूँ, कुरान साहबी रसूल का। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह का मानते हो तुम? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह को मानते हो? अरे आप लोग का तो जिंदगी फजाइले अमाल में गुजर अरे यार देखो भागने लगे। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। हाँ तो देखो सुनो, ये इब्ने अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि सुनना, इजा कुरियल कुरान फस्तमे लहू फान से तो लहो, यानी फिर सलातिल मफरूजा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये आयत इजा कुरियल कुरान हो, ये जो नाजिल हुई है ये फर्ज नमाज के लिए नाजिल हुई है, फर्ज नमाज के ताल्लुक से नाजिल हुई है। तो तुम बताओ साहबी रसूल से ज्यादा तुम जानते हो? खुला खुला झूठ है आप। झूठ कहाँ है ये बता दो, चलो झूठ कहाँ हुआ? ये नमाज के लिए नाजिल नहीं हुआ है। ये यानी तुम साहबी रसूल को नहीं मानते? साहबी रसूल झूठ बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तुमने साहबी रसूल को बोला। सारी तफसीरों में, तफसीर इब्ने जरीर, तफसीर इब्ने अब्बास, सारी तफसीरों में ये इनका नकल किया है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये आयत जो नाजिल हुई है ये नमाज के ताल्लुक से नाजिल हुई है। और दूसरी देखो, इमाम अहमद बिन हम्बल को जानते हो? इमाम अहमद बिन हम्बल को जानते हो? जानते हैं। हाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, ठीक है, कि ये सुनना भाई, बात तो सुनना, पूरी बात तो सुनना। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, अरे यार कुछ सुनता ही नहीं बात को। वो फरमाते हैं कि ये आयत, इस पर इजमा है कि ये आयत जो है ये नमाज के ताल्लुक से नाजिल हुई है, इस पर सारे उलमा का इजमा है। अब बताओ ये नमाज के ताल्लुक से नाजिल हुई है, तुम मानते ही नहीं हो इसको। वाह भाई, अब बोलते हो तुम कुरान और हदीस पर अमल करते हो। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब इमाम किरत करे तो मुक्तदी खामोश रहे। अब अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, उसको गौर से सुनो। ये कौन सा तुम लोग का धर्म है यार? कुरान हदीस छोड़ के, उलमा साहबा कराम के अमल को छोड़ के तुम किसके धर्म को मानने लगे यार? अजीब हाल जो है, तावील करते हो इधर उधर। ये कुरान हदीस जब आ जाए तो अपनी चूचा नहीं करना चाहिए, कुरान हदीस को मानना चाहिए। किसने तुमको पट्टी पढ़ाई है? सुन तुम्हारे पास कौन? अरे यार अकेला है, चूचा कौन कर रहे हैं? हम भी तो बोल रहे कि वो अकेला नमाज पढ़ने वाले के लिए, उसमें लिखा हुआ है अकेला के लिए। हाँ देखो वो भी मैं बता देता हूँ, आप खामोश रहो, वो भी मैं बता देता हूँ। जो अकेले की बात तुम कर रहे हो ना, ये लो, मैं जो हदीस अकेले के लिए जो बुखारी शरीफ की हदीस है ये देखो, ठीक है? सुनो ना बात को यार, पूरी बात को। ये देखो मेरे पास है इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सुनन तिरमिजी ये हदीस है। इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं वो अम्मा अहमद बिन हम्बल फ़काला
माना कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी इजा काना वहदहु वहतज्जा बिहदीसिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह हैसु काला मन सल्ला रकातन लम यक़रा फीहा बि उम्मिल कुरानी फलन युसल्ली इल्ला अन यकूना वराल इमामी काला अहमद बिन हंबल फहाजा रजुल बिन असहाबिन नबी तअव्वला कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी अन्ना हाजा इजा काना वहदहु। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कि जिसकी नमाज नहीं जिसने सूर्य फातिहा ना पढ़ी उसका ताल्लुक एक अकेले आदमी के लिए है जब वो अकेला नमाज पढ़े। और उन्होंने हजरत जाबिर जो सहाबी रसूल हैं उस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि जिसने नमाज की एक रकात पढ़ी बस उसने फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं हुई सिवाय हाँ मगर जब इमाम के पीछे हो तो उसकी नमाज दुरुस्त है। तो हजरत जाबिर जो सहाबी रसूल हैं इस हदीस का मतलब ये बयान कर रहे हैं कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, इसका ताल्लुक किससे है जब अकेला नमाज पढ़े। ये सहाबी रसूल फरमाते, सुनो ना यार, सहाबी रसूल इस हदीस की तशरीह फरमा रहे हैं कि वो अकेले के लिए है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं वो अकेले के लिए है। सुनना पूरी बात तो सुना कर। अल तमहीद पूरी, और रुकना भाई, पूरी बात तो सुनना, पूरी बात तो सुन लेना यार, खामोश रहे, जब मैं खामोश रहूं फिर बोला करना। तो यहाँ देख ये अल तमहीद जो हाफिज इब्ने अब्दुल बर जो सारे मोतबर उलमा में से माने जाते हैं ये भी फरमाते हैं कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा फीहा बिफातिहतिल किताबी खास ववाक़िउन अला मन सल्ला वहदहु औ काना इमामन फअम्मा सल्ला वराल इमामी फ़इन्ना क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। तो कह रहे हैं कि ये हदीस जो जिसमें कहा गया है कि उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा न पढ़ी, ये किसके लिए है? जब अकेला कोई नमाज पढ़े या जब कोई इमामत करे वो उसके लिए है। जहां तक उसकी बात है जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम की किरत उसकी किरत है। अब ये भी खुद फरमाते हैं ये हदीस के बारे में। अल मुगनी इब्ने खुदामा हम्बली मसलक के मोतबर आलिम में से हैं, ये खुद लिखते हैं अल मुगनी में, ठीक है, सफा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 263 में फ़अम्मा हदीस उबादत सही फ़हुवा महमूल अला गैरिल मामूनी व कजाल का हदीस अबी हुरैरा। कह रहे हैं कि हजरत उबादा की ये हदीस कि उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी वो किसके लिए है? वो गैर मुक्तदी के लिए है जो अकेला नमाज पढ़े। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस भी है कि वो जब अकेला नमाज पढ़े उसके लिए है। अब ठीक है, अब बताओ तुम। हाँ, अब और बताओ, और हवाले दूं? और ये देखो और हवाले हैं जो बुखारी शरीफ में ये हदीस है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी कि उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। इसमें एक रावी हैं जोहरी, इमाम जोहरी, वो रावी खुद कहते हैं कि ये अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए हदीस है। वो खुद रावी कह रहे हैं। तो तुम रावी से ज्यादा अपने बात को जानते हो, इमाम अहमद बिन हंबल से ज्यादा जानते हो, साहबी रसूल से ज्यादा जानते हो जो हदीस के बारे में कह रहे हैं कि अकेले नमाज के लिए है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे मुसलमान हो यार? कुरान हदीस के नहीं मानते, साहबी रसूल की नहीं मानते, उलमा की नहीं मानते, इजमा नहीं मानते। अजीब है हाल है तुम्हारा, किसकी मानोगे तुम? और भी दलीलें दूं? हेलो हेलो, हाँ, और भी दलीलें दूं? ये देखो तुम्हारे नीलुल अवतार अल्लामा शौकानी जो गैर मुक़ल्लिद के बड़े आलिमों में से हैं वो कह रहे हैं और राविल हदीसी आरफ बिल मुरादी बिही मिन गैरिही कि हदीस का रावी जो होता है वो अपनी मरवी हदीस का मतलब दूसरों से ज्यादा जानता है। अब्दुल रहमान मुबारक पूरी ये तुम्हारे गैर मुक़ल्लिद के बहुत बड़े मुहद्दिसीन में माने गए, ठीक है। वो भी तोहफतुल अहवज़ी में खुद कहते हैं कि जुज सानी और सफ़ा नंबर 203 में वक़त तकर्रर अन्ना राविल हदीसी अदरा बे मुरादिल हदीसी मिन गैरिही कि ये बात तयशुदा है, ये बात पक्की है कि हदीस का जो रावी होता है वो जो हदीस बयान करता है वो उसकी मुराद, वो हदीस की मुराद दूसरों से ज्यादा जानता है, दूसरों से बेहतर जानता है। ये तो अहले हदीस उलमा खुद मानते हैं, फिर तुम लोग क्यों इतना इधर भटके हुए हो यार? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हदीस और कुरान जब चीज मिल जाए उसके खिलाफ
نہیں جانا چاہیے بھائی، یہ مسلمان کا ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ایک یہ مسلمان کا نہیں ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف جائے ہو۔ قرآن خلاف آپ نہیں کرتے ہیں، جیسے بول رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، شور نہ مچاؤ، تو یہ آیت قرآن خوانی میں کیوں نہیں فٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے تو۔ ابھی میں نے کیا کہا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، جب وہ نماز، رکو نا یار، پوری بات کو تم نے اعتراض کیا، اعتراض کا جواب مجھے دینے دو نا بھائی۔ تمہارا اعتراض ہے کہ نماز پڑھا جاتا ہے تو آدمی ادھر ادھر پھر بھی شور مچاتا ہے اور چلاتا ہے، نماز قرآن پڑھتا ہے، یہی بولتے ہو نا تمہارے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت جب وہ نماز میں جاتا ہے تب اس پر وہ لاگو ہوتی ہے۔ اور یہ سنا، یہ ابن تیمیہ کو جانتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وہ خود کہتے ہیں، سنو نا یار، وہ خود کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اگر کوئی کہے کہ یہ نماز کے خارج ہے تو یہ کوئی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یعنی جو ایسا کہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو آیت جو 2 منٹ سنا کر یار، سنا کر 2 منٹ، جب اشکال ہے نا تو اشکال کا جواب دینے دوں گا تب تو اشکال دور ہوگا۔ قرآن حدیث کا انکار کرنے کے لیے اشکال پیش کرتے ہو، اس اشکال کا میں جواب دے رہا ہوں بھائی۔ ابن عباس یہ جو ارے یار خاموش رہا 2 منٹ نا بھائی۔ ہاں بول کھانے میں کیوں نہیں فٹ کرتے ہیں؟ وہاں قرآن سب پڑھتا ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، تو یہ آیت وہاں کیوں نہیں فٹ کرتے ہیں؟ آپ اپنا من مرضی چلائیں گے کہ قرآن جہاں نماز نہیں ہوگا وہاں روک دیں گے کہ یہاں نماز نہیں پڑھو، سب کا نماز خراب کریں گے۔ یہ آیت یہاں قرآن خوانی میں فٹ کریے نا۔ ارے سننا بات کو، قرآن خوانی جو ہوتی ہے وہ نماز کے اندر ہوتا ہے کہ نماز کے باہر ہوتا ہے؟ سننا بات کو، قرآن خوانی جو ہوتی ہے وہ نماز کے اندر ہوتا ہے، نماز کے باہر ہوتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے قرآن ہی نا، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ارے یار جب یہ آیت صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ یہ نماز فرض نماز کے تعلق سے ہے، یعنی جب فرض نماز میں کوئی امام کے پیچھے مقتدی جو ہے نماز پڑھ رہا ہو تب یہ اس پر وہ لاگو ہے۔ تم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں، صحابی رسول سے زیادہ تم فہم سمجھتے ہو اپنے آپ کو۔ اچھا یہ بتاؤ، سنو تم صحابی رسول ارے یار تم بڑبڑ کر رہا، صحابی رسول سے زیادہ جانتا ہے؟ صحابی رسول سے زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرأت کرے، جب امام قرآن فرما رہے ہیں، مقتدی کے لیے فرما رہے ہیں، مقتدی کے لیے سننا بات کو، مقتدی کے لیے فرما رہے ہیں۔ مقتدی جو نماز میں شامل نہیں ہے اس پر وہ تھوڑی لاگو ہوتا ہے، مقتدی کے لیے فرما رہے ہیں نا۔ اور اچھا یہ بتاؤ، سنو بتاؤ، اچھا چلو کوئی قرآن خوانی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے تم قرآن کا انکار کرو گے؟ قرآن کا انکار تو آپ کر رہے ہیں۔ یہ تم کر رہے ہو نا قرآن کی نافرمانی، ہیلا بہانی کر رہے، ہیلا بہانہ کرو گے؟ مطلب ہیلا بہانہ کرو گے؟ ہیلا بہانہ کرو گے؟ قرآن کو نہ ماننے کے لیے ہیلا بہانہ کرو گے؟ حدیث کو نہ ماننے کے لیے ہیلا بہانہ کرو گے؟ لوگوں کو گمراہ مت کیجیے۔ اچھا یہ قرآن پڑھنا گمراہ کرانا ہے؟ استغفر اللہ۔ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، صحابی رسول کا فہم بتا رہا ہوں، استغفر اللہ، اس کو گمراہ کہتے ہیں؟ آپ کون فرقے سے ہیں بولیے تو؟ آپ فرقے کون سے فرقے کے ہیں؟ ہاں آپ کون سے فرقے کے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں۔ اہل سنت والجماعت تو دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے۔ تو وہ مسلک ہوتا ہے، مسلک آپ نے پوچھا، مسلک نہیں پوچھا نا، فرقہ پوچھا آپ نے۔ ہاں فرقہ ہی تو ہے وہ، اور کیا ہے؟ کون سے مسلک ہے، کون سے فرقے سے ہیں؟ فرقے میں 4 اہل سنت والجماعت میں 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔ ہاں تو آپ مسلک پوچھتے تو ہم بتا دیتے۔ کون مسلک ہے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، وہی اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند سے تعلق ہے میرا۔ بتائیے آپ بھی حنفی ہیں ہے نا؟ ہاں بالکل الحمدللہ حنفی۔ بریلوی بھی حنفی ہے، تو دونوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کیا چیز؟ آپ بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہے، تو دونوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اچھا یہ بتائیے، ٹھیک ہے، یہ بتائیے
ये अपने आप को मुसलमान कादियानी भी बोलता है, शिया भी बोलता है, मुनकिरीन हदीस भी बोलता है, फिर भी इख्तिलाफ है ना, क्यों इख्तिलाफ है आप बताइए। तो वो लोग तो नबी का इनकार करता है ना, कादियानी लोग, आखिरी नबी का। ये तो आखिरी आखिरी नबी क्या चीज? कादियानी लोग जो है वो नहीं नहीं, आपने कहा इख्तिलाफ क्यों है, तो इसीलिए हम कहते हैं ना बरेलवी में इख्तिलाफ है, क्योंकि उनके अकायद जो हैं कुरान हदीस के खिलाफ हैं, इसलिए इख्तिलाफ है। तो आपने जो जवाब तो खुद ही दे दिया आपने कि वो इख्तिलाफ। अच्छा, क्या चीज कुरान हदीस के मानने वाले हैं? क्या चीज बोल रहे हैं कि आप कुरान हदीस के मानने वाले हैं? हनफी जो है और शाफई जो जितने अहले सुन्नत वल जमात हैं वो ही कुरान हदीस मानने वाले हैं, ना कि ये अहले हदीस फिरका जो रजिस्टर अहले हदीस फिरका बाद में आया है, जिसका पहले वजूद ही नहीं था अंग्रेज के पहले, वो थोड़ी कुरान हदीस मानता है। कुरान हदीस तो हम ही लोग मानते हैं। अभी तो साबित भी मैंने कर दिया। अभी देखो किरत खल्फुल इमाम में देखो कुरान हदीस कौन मानता है, मेरे पास दलील है कुरान की, हदीस की दलील है, साहबा कराम का फहम है, उलमा की तशरीयात है, सब हमारे साथ है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तो कुरान हदीस के खिलाफ साबित हुए। नमाज के लिए नाजिल हुआ, ये एकदम सफेद झूठ है। तो ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सफेद झूठ बोल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे बकौल तुम्हारे बकौल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सफेद झूठ बोल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तफसीर इब्ने कसीर पढ़े हैं, उसका पूरा तफसीर सूरह फातिहा का पढ़े हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है। और वो आयत तफसीर इब्ने कसीर पढ़ के सुना दूं? तफसीर इब्ने कसीर से सुना दूं? बोलो, अगर तुम झूठ बोलते हो। तफसीर इब्ने कसीर से ही सुना देता हूँ। ये देखो तफसीर इब्ने कसीर ने लिखा है, तुम खाली खामोश रहो, खामोश रहोगे तभी बात होगी, ठीक है। ये तफसीर इब्ने कसीर में है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फिल आयती कौल ही वही जा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु अनसितु, यानी फिस सलातिल मफरूजा। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु अनसितु, ये आयत नाजिल हुई है फर्ज नमाज के ताल्लुक से। ये तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है। झूठ है ये झूठ है। सूरह आराफ सुनना, या तुम तफसीर इब्ने कसीर वो पढ़ा होगा जो जूनागढ़ी का तर्जुमा होगा। सुनना, सुन। अरे भाई बात करो ना, क्यों भाग रहे हो यार, बार बार फोन काट। रोजा नहीं रखे हैं? बिल्कुल रोजा, मुसलमान रोजा नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तारी का टाइम हो रहा है, फोन में बकवास करने कोई फायदा है? जाइए आप तारी का। सब कुरान हदीस बकवास है? कुरान हदीस को बकवास बोलते हो? अरे अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कुरान हदीस बोलता हूँ। चलो इफ्तारी बात कब करूँ, तरावी बात करूँ कितने बजे? नहीं है भाई, आप लोग जैसा से बात करेंगे कोई फायदा नहीं है। क्यों कुरान हदीस नहीं मानोगे? हम कुरान, मेरे पास कुरान भी है, हदीस भी है, आपकी बात क्यों मानेंगे? आप क्या है? ये मैंने जो सब कुरान हदीस बयान की है उसको तुम नहीं मानते? बताइए कि आप हैं कि आलिम हैं? नहीं आपको देखा, आप नहीं आपको जानते। मतलब ये क्या हुआ? अच्छा ये बता, सुनो, तुम्हारे यहाँ कौन सबसे बड़ा आलिम है, जरा उसका नंबर दे दो, उससे बात करा दो। चलो वो जाफर, वो तुम्हारा जाफर तो भाग रहा है फोन काट के, मेरे से बात ही नहीं कर रहा, वो भी डर के मारे भाग रहा है, तुम भी डर के मारे भाग रहे हो। क्या बात है भाई? जाफर सलफी जो है, जिसने तुम लोग को भड़काया है सऊदी से आके, वो खुद फोन काट के भाग रहा, डर रहा है, कुरान हदीस पे बात करने को तैयार नहीं है। तुम्हारे पास सुनो, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा आलिम है, जरा उसका नंबर दे दो, या उससे तुम बात कराओ अपने नंबर से। मेरा नंबर कौन दिया आपको, ये बताइए ना। अरे कहीं भी मिला होगा, उससे क्या लेना देना है, ये बताइए। वो अहम है कि कुरान हदीस की बातें अहम है, कुरान हदीस पर अमल करना अहम है। तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा आलिम कौन है, ये बताइए। आप पहले मेरा सवाल जवाब दीजिए। मेरा नंबर आपको, हाँ, तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे या तो मेरा बात कराइए अपने नंबर से, या मुझे नंबर दीजिए उसका, मैं बात करता हूँ, फिर आप देखना। मेरा नंबर आपको कौन दिया से पहले बोलिए। अरे वो किसी ने भी दिया हो, उससे क्या लेना देना आपको? आपको ऐसे ही किसी को फोन लगा दीजिएगा। आपको मैं नाम बताया हूँ, मैं आपको फोन लगाया हूँ, किसी को कैसे लगाया मैं? किसी ने भी दिया हो, किसी ने बोलने में शर्म आता है। अरे किसी ने भी दिया हो, उससे क्या, कहीं मिला है? ग्रुप से मिला है, ग्रुप से मिला। आप लोग ग्रुप चलाते हो कि नहीं चलाते हो? ग्रुप से मिला है मुझे।
कौन दिया? ग्रुप छोड़िए, ग्रुप बहुत ग्रुप है। गुरु गुरु हाँ, तो ग्रुपों से मिला है, वाय वाय करके कहीं किसी ने डाला होगा, और आप लोग की बातें डाला होगा ग्रुप। अरे यार, आपका जाहिद हुसैन नाम है ना कि नहीं है, बताओ। सुनिए ना, जाहिद हुसैन नाम, अरे यार ग्रुप, तुम कुरान हदीस पे क्यों नहीं अमल करते, ये मेरी समझ में नहीं आता। कुरान हदीस को क्यों नहीं मानते, कुरान हदीस को क्यों नहीं मानते, सलफ को क्यों नहीं मानते। आपको किसने बोला? अभी मैं कुरान हदीस पेश कर रहा हूँ, आप इनकार कर रहे हो। पूरा झूठ बोल रहे हैं, आपकी बात क्यों मानेंगे? झूठ, अगर मैं झूठों पर अल्लाह की लानत, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बोलो आमीन। दोनों में से जो आमीन बोल, आमीन बोल। हम दोनों में से जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत। आमीन बोल, आमीन बोल। अगर सच्चा मुसलमान है तो आमीन बोल। हम दोनों में से जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत, रमजान में अल्लाह की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, सारे इंसानों की लानत। आमीन बोल, खाली आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल ना, आमीन बोल। तुमको बोलने में नाम बोलने में क्या बोल रहे हो? आमीन बोल। हम दोनों में से जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत, आमीन बोल। तू झूठा है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत। अरे बोलो, जो भी झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत, आमीन बोल। जो झूठा होगा उसके ऊपर अल्लाह की लानत। और तुम आमीन सुम्मा आमीन। हम दोनों में से जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत, आमीन। अल्लाह ताला, हम दोनों में जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत हो। मैंने अगर गलत हवाले दिए हैं तो मुझ पर लानत हो, और ये झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, तो इस बंदे पर लानत हो, अल्लाह की लानत हो। आमीन सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। अब देखो, रमजान में इंशाल्लाह लानत पड़ गई तुझ पर, और मैंने सारे हवाले सही दिए हैं, और मैं सारे हवाले लगा भी दूंगा, असल किताब से सब लगा दूंगा, आईडियो में लगा दूंगा। सारे लोग देख लेंगे कि कौन झूठा कौन सच्चा। ठीक है। हम भी हवाला पूरा तफसीर इब्ने कसीर तुमने जूनागढ़ी वाला पढ़ा होगा। जूनागढ़ी जो गैर मुकल्लिद का सबसे वो आदमी है जो तहरीफ करता है इबारतों में तहरीफ करता है। तुम अंधा मुकल्लिद है, तुमको क्या है, तुमको कुछ मालूम नहीं है, तुम अंधा मुकल्लिद है। तुम जूनागढ़ी का तर्जुमा पढ़ा होगा, जूनागढ़ी का तफसीर इब्ने कसीर का तर्जुमा पढ़ा होगा, तो वो गलत सलत कुछ भी बोलेगा तो अंधा मुकल्लिद मान लेगा। ठीक है। मैं असल किताब से अरबी इबारत लगा दूंगा। अरबी इबारत जो असल किताब है वो कहाँ से छपी है, बाहर सऊदी अरब से, बैरूत से जो छपी है उसका नुस्खा लगा दूंगा। ठीक है। पूरी दुनिया देखेगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और कौन कुरान हदीस पर अमल करता है, हम लोग या तुम लोग जो गैर मुकल्लिद जो रजिस्टर अहले हदीस हैं वो कुरान हदीस के मुनकिर हैं। ठीक है। तुम कुरान हदीस के मुनकिर ठहरे, ये सब पता चल जाएगा इस आइडियो से, जब सारे इसके। हाँ, इसीलिए सऊदी से आप लोगों को बैंड किया गया है, गुमराही वहाँ भी जाकर फैला रहे थे। क्या बैंड किया गया है? हमारे सऊदी में, सऊदी की बात कर रहा है, हमारे उलमा ने तो वहाँ मस्जिद नबी में दर्स दिया है, मस्जिद नबी पर हदीस की किताब लिखे हैं, हदीसों का दर्स दिया है। तुमको क्या मालूम? हमारे सुनना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ के बादशाह ने, वहाँ के बादशाह उनका जूता पीछे से लेके चलते थे। सुन, इतना इज्जत दी है। और वहाँ के खाना काबे का जो खजांची जिसके चाबी रहती थी, उसने उनके इकराम में चाबी दे दिया था। अबे ऐसे हमारे आलिम, तुम्हारे आलिम किसने कभी ऐसे उसकी इज्जत अफजाई हुई है? उसकी इसका अफजाई हुई है? अरे अभी बताऊं को सारी चीजें, तुमको कुछ मालूम तो है ही नहीं है, कोई चीजें है मालूम है ही नहीं है। मेरा नंबर पागल, मेरा नंबर, तेरा नंबर किसने दिया? इससे क्या लेना देना? ग्रुप में था, मिल गया, इससे क्या लेना देना? तेरा नंबर मिला तो क्या गलत हुआ? हमने कोई गलत बात बोली? कुरान हदीस से एक बात बोली, कुरान हदीस की बात बोली, ये पता चला कि तुम लोग कुरान हदीस के मुनकिर ठहरे। हम कुरान हदीस पेश कर रहे हैं, हम साहबी रसूल की बातें पेश कर रहे हैं, तो साहबी रसूल को गलत सलत बोलता है कि साहबी रसूल को गलत सलत बोलता है, हदीस और रसूल को ठुकराता है, हदीस रसूल का इनकार करता है, कुरान हदीस का इनकार करता है, साहब रसूल का फहम, सलफ का फहम का इनकार करता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो पता चल जाएगा, ऑडियो और दलील जब सबको मिलेगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा जनाब कि कौन इनकार किया है। हम तो कुरान हदीस के मानने वाले हैं, हमने कुरान हदीस से अपनी जो दलील है हमने कुरान हदीस से साबित किया है, और साहबा कराम के फहम से साबित किया है। झूठ तो तुमने बोला है, कई झूठ कुरान पर हदीस पर
कई झूठ बोला है जनाब, वो खैर सब पता चल जाएगा। तुमने जो कुरान हदीस पर झूठ बोला है, सारी आइडियो जब पता जाएगी तो पता चलेगा, ठीक है। मेरा नंबर कौन दिया? बोलने में शर्म लग रहा है। किस ग्रुप में आया था, किसने दिया वो देखना पड़ेगा भाई। तो इतना बोले जाफर का दिया, कौन दिया नंबर आपको? जाफर से तो मैंने बात किया, वो तुम्हारा गुरु है क्या जाफर, ये बताइए। तो यही तो बात हमको समझ में, कौन बोला आपको मेरा जाफर गुरु है? शर्म नहीं लगता बोलने में? किसी के पास भी फोन उठा के कर देते हैं फालतू बात करने के लिए। यही दिन फैलाने का ये तरीका, ज्यादा इल्म है तो ये अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कुरान हदीस की बातें फालतू बात है, ये दीन का काम है, ये फालतू बात है। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई कुरान हदीस सुनो ना, तुम्हारे पास अच्छी दलील होगी तो हम मान लेंगे, अगर हमारे पास है कुरान हदीस की दलील तो तुमको मानने में क्या हर्ज है? तुम कुरान हदीस की बात ही नहीं कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो खाली आके। मैं ये कुरान पढ़ रहा हूँ, ये झूठ है। इजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसतु